Hello everyone, welcome back. So we were discussing the important areas for agriculture optional mains examination 2025 and we are discussing soil science portion. Till now we have discussed plant nutrition. So some of the topics in plant nutrition, that is nitrogen and phosphorus related topics, and we have seen biofertilizers. In the last session, we have discussed integrated nutrient management and carbon nitrogen ratio and its significance. Now, in this particular session, in this session, we'll be discussing problem soils. So, this is one of the most important areas from soil science. So, there is a high probability of getting a question from this particular topic. अच्छा, प्रॉब्लम सॉइल्स में भी ज्यादातर चांस है कि सलाइन अल्कलाइन सॉइल से पूछा जाए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, इफ यू सी द पीवाईक्यूज, मोस्टली सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन मेजर्स हैव बीन आस्क्ड. एसिडिक सॉइल से बहुत कम क्वेश्चंस आने के चांस है. इफ दे आस्क ए वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सपोज they ask what are problem soils and their reclamation measures, then you have to write acidic soils also, but ऐसा question कम आता है. Mostly they ask about saline and alkali soils. Okay, so to start this topic, basically what are problem soils? अगर layman's language में बताया जाए तो problem soils are those soils which do not support proper plant growth due to adversely affected, if some characters of the soil are adversely affected, like if some physical property or chemical property or biological property of the soil is adversely affected, then it will not be able to support the plant growth properly. So such soils which are not able to support the proper plant growth, जहां पर productivity कम हो जाएगा, right? So it might affect the productivity. So such soils which are not able to support the proper plant growth, where plants are not able to grow or complete their life cycle, such soils which have inherent defect, उन soils में या तो कोई physical property या फिर chemical property या फिर कोई biological characteristics and biological property है, they are adversely affected, which are hampering the growth of the plant. So such soils are problem soils. अच्छा, कौन से soils को तुम, what soils are categorized as problem soils? So if you see, generally हम लोग examination point of view, if you see from examination point of view, generally we take acidic soils, saline and alkali soils as problematic soils. But again, अगर तुम generally देखो तो और categories भी हैं. So soils like waterlogged soils, ये भी problem soils है ना, क्योंकि submerged condition में plants grow नहीं कर सकते. So only few crops can be grown, जैसे paddy है या फिर jute है, उनको grow कर सकते हो, but normal mesophytes cannot grow in waterlogged soils. Aeration का problem होगा. And severely eroded soils, या ravines हैं, severely eroded soils, they can be categorized also. They also can be categorized as problem soils. But from examination point of view, हम लोग acid soil, saline and alkali, इन तीनों को cover करेंगे. So exam में इनके बारे में ही पूछा जाता है. Waterlogged soils वो drainage वाला topic separate है. We can cover that under agronomy. बाद में cover कर लेंगे. ठीक है. So problem soils में we'll be mainly discussing acid soils, saline and alkali soils. ठीक है, इनके बारे में how these soils are formed, what are their effect on the plant or the crop growth, how they can be reclaimed. We'll be discussing these things. Okay, so let us begin the topic. We'll start with acidic soils. ठीक है, पहले एक acid soils क्या होते हैं वो discuss करेंगे, then we will see how they are formed and all those things. Now what are acid soils? Okay, now in soils we know the primary particles are there, right? Soil का अगर तुम composition याद है, if you remember the soil composition, 45% जो तुम्हारा है mineral matter होता है,
0 to 5% is something somewhere around 0 to 5% is organic matter, बाकी 25% तुम्हारा water, soil water and 25% soil air, right? ये composition है. If you see mineral matter में क्या है? Mineral matter में some minerals are more resistant to weathering, धीरे धीरे weather होते हैं. Some minerals are softer, they weather very quickly. Silicate clays हैं वो जल्दी weathering होते हैं. So you have your primary particles, sand, silt and clay. Okay, and clay particles are the smallest one. Clay से नीचे जाओगे तुम, colloids हैं. Clay colloids बोलते हैं हम लोग इसीलिए. So clay colloids, they have 1:1 type structure or 2:1 type or 2:1:1 type. जो main groups हैं उसमें 1:1 हो सकता है. केओलिनाइट इज द बेस्ट एग्जांपल. या फिर 2:1 टाइप्स हैं जिसमें स्पेक्टाइट ग्रुप आता है, इलाइट भी आता है. 2:1:1 क्लोराइड जिसमें फॉल होता है. सो वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है. तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को ये पता है, राइट? सो ये 1:1 का मतलब है 1 टेट्राहेड्रल लेयर एंड 1 ऑक्टाहेड्रल लेयर. 2:1 माने 2 टेट्राहेड्रल लेयर्स विच आर सैंडविचिंग 1 ऑक्टाहेड्रल लेयर. यहाँ पे 2:1:1 का मतलब है 2:1 जो लेयर्स हैं, 2:1 लेयर, दो 2:1 क्ले पार्टिकल्स के बीच में एक ब्रूसाइट लेयर है, मैग्नीशियम रिच लेयर है. दो 2:1 सॉइल क्ले पार्टिकल्स के बीच में एक ब्रूसाइट लेयर है, दैट इज 2:1:1. अच्छा, जब हम लोग 1:1 बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब है एक तुम्हारा सिलिका लेयर है एंड एक तुम्हारा एल्यूमिना लेयर, Al2O3. 1 सिलिका लेयर एंड 1 एल्यूमिना लेयर. तो सिंप्लिसिटी के लिए क्ले स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको बना सकते हैं बट इट विल टेक टाइम. सो हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से बना देते हैं हम लोग. सो दिस इज एल्यूमिना लेयर, Al2O3. 1 सिलिका लेयर विच इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो इसलिए उसको टेट्राहेड्रल लेयर बोलते हैं. एंड 1 एल्यूमिना लेयर विच हैज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. सो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. सो 1 ऑक्टाहेड्रल 1 टेट्राहेड्रल लेयर. सो ये 1:1 क्ले पार्टिकल. देन वी हैव 2:1 टाइप, यानी दो सिलिका लेयर के बीच में एक एल्यूमिना लेयर है, ऑक्टाहेड्रल लेयर. 1 ऑक्टाहेड्रल लेयर बिटवीन 2 सिलिका लेयर्स. So this octahedral layer is sandwiched between 2 silica layers, Al2O3. Okay. Now मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्ले पार्टिकल का? Because now I have to draw the cations which are adsorbed on these clay particles. So जो तुम्हारे cations हैं वो सारे तुम्हारे clay particles के surface के ऊपर adsorbed होते हैं. Adsorbed surface phenomena है because of the negative charge of these clay particles. अच्छा, और negative charge क्यों आता है वो बताऊंगा मैं तुमको. Now the thing is, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा alumina layer is sandwiched between 2 silica layers, right? तो ये तुम्हारा 2:1 type of clay particle है. अब ये एक clay particle है, दूसरा clay particle यहाँ पर है, यहाँ पर ये भी 2:1 type है. This is also 2:1 type. तो ये एल्यूमिना लेयर है, ठीक है? एल्यूमिना लेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 सिलिका लेयर्स. राइट नाउ ये दो पार्टिकल्स के बीच में देयर इज एक्सपैंडिंग स्पेस. There is space between these two particles which expand. So ये टाइप के जो मिनरल्स हैं, ये स्पेक्टाइट ग्रुप्स में तुमको मॉन्ट मोनोलाइट इज द एग्जांपल वेयर
there is expanding space between the clay particles. तो जब भी पानी, जब whenever you water such clays, तो this expanding space is present, ये ज़्यादा swelling होता है, and some of the ions they enter into this space. इस space के बीच में भी चले जाते हैं ions, they are held in that space. Now अब जो ये तुम्हारा एल्यूमिना है, एल्यूमिना लेयर है, ऑक्टाहेड्रल लेयर बता रहा था ना, Al2O3 लेयर. नाउ एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3 है, Al3+, राइट? नाउ समटाइम्स एल्यूमिना लेयर में जो एल्यूमिनियम आयन है, इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद मैग्नीशियम आयन. आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा जो रेडियस है, जो तुम्हारा आयोनिक रेडियस है, अगर सिमिलर आयोनिक रेडियस है तो दे कैन सब्स्टिट्यूट इजीली. एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता, बट सिमिलर साइज है, अगर तुम्हारा आयन का आयोनिक रेडियस सिमिलर है तो दे कैन इजीली सब्स्टिट्यूट. तो एल्यूमिनियम हियर इन द एल्यूमिना लेयर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद मैग्नीशियम, पर मैग्नीशियम का वैलेंसी तो 2 है, Mg2+ होता है. तो देयर इज वन नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा डेवलप्ड इन दिस लेयर. क्यों? एल्यूमिनियम 3 नेगेटिव चार्जेस को, Al3+ जो है 3 नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस कर रहा था, पर एल्यूमिनियम चले गया और मैग्नीशियम आ गया. मैग्नीशियम तो सिर्फ 2 ही नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस कर पाएगा, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. तो इस तरह से जो आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से दैट इज वन प्राइमरी रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स. सो आप देखोगे सॉइल कोलाइडल पार्टिकल्स बुक्स में भी, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो दे हैव नेगेटिव चार्ज बोलते हैं. सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस नेगेटिव चार्ज इज द आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन. सो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन Si4+, इसका वैलेंसी 4 है, तो सिलिकॉन को एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट कर सकता है. सो व्हेन एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का 3+ है वैलेंसी, सिलिकॉन का तो 4+ है. तो यहां पर क्या होगा, जब ये सब्स्टिट्यूट कर देगा तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा डेवलप होगा. सो टेट्राहेड्रल लेयर में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल लेयर में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. ओके, सो जहां पे ज्यादा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम रिप्लेस करेगा, ठीक है. सो एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम रिप्लेस कर सकता है. सो जहां पर ज्यादा मैग्नीशियम आयन्स हैं ऑक्टाहेड्रल लेयर्स में, इट इज कॉल्ड ट्राइऑक्टाहेड्रल लेयर. ट्राइऑक्टाहेड्रल लेयर मींस यहां पर तुमको 3, देखो ऑक्टाहेड्रल माने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 3 मैग्नीशियम आयन्स की जरूरत होगी सेटिस्फाई करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर. सो ट्राइऑक्टाहेड्रल, ट्राई 3. अगर एल्यूमिनियम ज्यादा है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, मैग्नीशियम हैज नॉट सब्स्टिट्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द एल्यूमिना लेयर, यानी एल्यूमिनियम ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल में, तो Al3+, Al3+. डाइऑक्टाहेड्रल, 2 एल्यूमिनियम आयन सफिशिएंट है टू सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहां पर 3 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ट्राइऑक्टाहेड्रल लेयर बोलते हैं. सो ट्राइऑक्टाहेड्रल लेयर, डाइऑक्टाहेड्रल माने 2 एल्यूमिनियम आयंस की जरूरत होगी टू सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अच्छा, हम लोग जनरली बोलते हैं कि तुम्हारा जो कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल क्ले या सॉइल कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, इट इज नेगेटिवली चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मेन रीजन. और दूसरा एक और रीजन है कि तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं, दे कैरी द नेगेटिव चार्ज. सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है तुम्हारा, वो भी ब्रेक हो जाता है एंड नेगेटिव चार्ज विल डेवलप, O-, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ऑन द टेट्राहेड्रल लेयर. तो वो एक रीजन है, और आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन एक रीजन है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. आई होप यू ऑलरेडी नो दिस, आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा. सो टू गिव अ बैकग्राउंड कि नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद ये पता ना हो कि नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप होता है. नेगेटिव चार्ज डेवलप्स बिकॉज ऑफ आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन एंड आल्सो ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द टेट्राहेड्रल लेयर. उससे O नेगेटिव चार्ज, ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. सो दोज आर द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. अच्छा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, दे अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. हाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं सॉइल में, उनको अट्रैक्ट करते हैं.
राइट, दे अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स इन द, फिर अल्यूमिनियम आयरन वो भी हैं, दे आर अट्रैक्टेड एंड दे एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द क्ले पार्टिकल। सो ये जो ज्यादा तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सो दीज देखो पोटेशियम है यहाँ पर, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी है, देन देयर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आल्सो व्हिच कैरी द पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स। सो तुम्हारा जो सॉइल में मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्ले कॉम्प्लेक्स, दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। सो अगर क्ले अगर निकल गया तुम्हारे सॉइल से, तो मेजॉरिटी ऑफ द फर्टिलिटी विल आल्सो बी रिमूव्ड। सो जब भी तुम्हारा एरोजन होता है, एरोजन में स्प्लैश एरोजन होता है फर्स्ट स्टेज, स्प्लैश एरोजन के बाद शीट एरोजन होता है। सो व्हेन शीट एरोजन हैपेंस, उसका रिल होगा, फिर गली होगा, ग्रेजुअली इट प्रोग्रेसेस। सो शीट एरोजन में क्या होता है, द फाइनेस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ थिन शीट विद द रन ऑफ वाटर। तो तुम्हारा फर्टिलिटी जो है पूरा निकल जाता है शीट एरोजन में। सो फर्टिलिटी बेरिंग पार्ट क्या है, क्ले पार्टिकल्स, सो दे एड्सॉर्ब द न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑन देयर सरफेस, एड्सॉर्प्शन, सरफेस फिनोमेना। अच्छा ठीक है, सो हियर इन एसिडिक सॉइल्स व्हाट हैपेंस इज, एसिडिक सॉइल्स में क्या होता है कि ये जो क्ले कॉम्प्लेक्स है ना, इट इज overwhelmingly saturated with hydrogen ions. So in acidic soils, the clay complex या colloidal complex बोल सकते हो, clay complex बोल सकते हो, it is saturated with hydrogen ions. So such soil where clay complex is saturated with hydrogen ions, those soils are called as acidic soils. Their pH is less than 7. 7 से नीचे उनका pH होता है. So acid soil is बेस अनसैचुरेटेड सॉइल। अब यहां पर बेस अनसैचुरेटेड सॉइल क्यों बोला है, यहां पर हाइड्रोजन आयन्स हमने भर दिया क्ले कॉम्प्लेक्स को, तब हम लोग बोल रहे हैं कि सैचुरेट हो चुका है, पूरा भर चुका है, ऑल द नेगेटिव चार्जेस आर सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन आयन्स। तो ये सैचुरेट हो चुका है पूरा क्ले कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स विद हाइड्रोजन आयन्स। नाउ व्हेन आई एम सेइंग अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मींस पूरा नहीं भरा है, थोड़ा बहुत जगह है, खाली है। हाँ, so these are base unsaturated। तो यहां पर क्या है, your bases are there, bases में कैल्शियम आयन्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं because they form base when mixed with water। तो यहां पर bases हैं लेकिन बहुत कम है। so bases are there but very less bases are there, mainly तुम्हारा हाइड्रोजन आयन is occupying it। bases are there but very few। so bases से सैचुरेट नहीं हुआ है, ये बाकी जो पूरा जगह है वो हाइड्रोजन आयन्स ने घेर लिया है, कहीं कहीं पर बेसिस है हमारे। so बेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जनरली इसमें काउंट नहीं करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, these are your bases because when you mix them with water they form base forming cations। so these are base forming cations, OH के साथ मिलेगा तो base बनेगा, they are base forming cations। so it is unsaturated, base unsaturated, bases है लेकिन ज्यादा नहीं है, एक दो ही है, बाकी पूरा जगह तुम्हारा हाइड्रोजन ने घेर लिया। so these are acid soils में mainly तुम्हारा हाइड्रोजन आयन्स will occupy mainly the negative charge। so colloidal complex में जो majority negative charge है that is occupied by hydrogen, that is why they are called as base unsaturated soil which has got enough adsorbed exchangeable hydrogen ions। so उसमें इतने hydrogen ions हैं कि वो pH 7 से नीचे देता है। so acid soils are those soils which have a pH less than 7। these are base unsaturated soils where the negative charge is mainly occupied by hydrogen ions। so that is your acid soil। ठीक है, so सॉइल एसिडिटी जो आ रहा है, मेनली एसिड सॉइल जो डेवलप हो रहा है, दैट इज बिकॉज यहां पे जो बेसिस पहले थे ना, जो यहां पर बेसिस थे, दीज आर ऑल रिमूव्ड। ये बेसिस रिमूव हो गए, किसने निकाला इनको, हु रिमूव दीज, एक्सेसिव रेनफॉल। सो जहां पर ज्यादा बारिश होती है, सो वाटर जब सॉइल में जाएगा, राइट,
So water is moving in the soil. So water जब नीचे move कर रहा है, percolation हो रहा है, so water when it is moving down in the soil profile, it will dissolve certain substances. जो भी soluble है वो dissolve कर लेगा, जो भी suspend हो सकते हैं suspend हो जाएंगे, and they move to lower layers. So तुम्हारा root zone के beyond ले जाता है. So these bases are removed beyond the root zone. So in areas where there is excess rainfall, these bases, they are removed, they are leaching. So anything which moves along with the water is called as, it is said to be leached. पानी के लिए हम लोग leached use नहीं करते हैं. Water is percolating. So along with water, other substances which are soluble in the water, they are leached to the lower layers. Leaching दूसरे substances के लिए use किया जाता है, solutes के लिए, not for water. Water के लिए हम लोग percolation term use करते हैं, ठीक है? So तुम्हारा रूट जोन, जहां पर रूट जोन है, जहां पर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर, जहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, उससे नीचे वाले लेयर्स में, मे बी few meters below the root zone, these bases are removed from the root zone to deeper depths. तो तुम्हारा क्ले कॉम्प्लेक्स या कोलाइडल कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारा रूट जोन में क्ले पार्टिकल्स है, वहां तो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, अब ये सारे बेसिस निकल गए, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो जो खाली थोड़ी ना रहेगा. So your carbonic acid which is present, so hydrogen ion which is produced by the dissociation of carbonic acid, ये soil में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा तो CO2 plus H2O makes H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनता है. हाँ, सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर भी है, दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड बनेगा. इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस. ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, दे विल ऑक्यूपाई द नेगेटिव चार्ज. तो क्ले कोलाइडल कॉम्प्लेक्स में जो नेगेटिव चार्ज बचा था, उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? हाइड्रोजन आयंस. बेसिस चले गए, नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज जो तुम्हारा हाइड्रोजन आयंस है, दे विल अटैच themselves, adsorb on the surface of the clay complex. So that is the reason why, that is the main reason why your acid soils are formed. So soil acidity is common in all regions where precipitation is higher enough to leach appreciable quantities of exchangeable base forming cations. So exchangeable का मतलब क्या है यहाँ पर? So exchange is happening between the root, ये root hair है, हाँ, ये प्लांट का रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस ट्री, रूट हेयर, एंड हियर इज योर क्ले पार्टिकल. सो क्ले पार्टिकल और सॉइल रूट हेयर के साथ एक्सचेंज हो रहा है. सो एक्सचेंज इज हैपनिंग बिटवीन, कैल्शियम ले लेता है एंड यहां से तुमको हाइड्रोजन मिलता है. सो हाइड्रोजन डायरेक्टली तुमको रूट हेयर से नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ रूट्स. रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं. सो एक्सचेंज इज हैपनिंग बिटवीन द प्लांट्स रूट हेयर एंड क्ले कॉम्प्लेक्स. सो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंजेबल कैटायंस बोल रहे हैं, यानी ये एक्सचेंज होते हैं रूट के साथ, एक्सचेंजेबल कैटायंस. सो प्लांट्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आयन एक्सचेंज ऑल्सो. सो बहुत सारे मैकेनिज्म है, मास फ्लो हाइपोथेसिस है, डिफ्यूजन है, देन वी हैव आयन एक्सचेंज. सो आयन एक्सचेंज हैपेंस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड द रूट हेयर. सो इसीलिए इसको एक्सचेंजेबल आयंस बोला है. नाउ इन एसिड सॉइल्स मोस्ट प्लांट न्यूट्रिएंट्स बिकम अनअवेलेबल. तो एसिड सॉइल्स का एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सॉइल, उसको प्रॉब्लम सॉइल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एट न्यूट्रल पीएच. पीएच तुम्हारा ज्यादा होगा या कम होगा तो न्यूट्रिएंट्स विल बी अनअवेलेबल. सो मैं थोड़ा सा डेप्थ में तुमको चले गया कि क्या होता है, क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, थोड़ा सा, बिकॉज थोड़े लोगों को जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड्स हैं, उनको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता रहता है, नेगेटिव चार्ज क्यों है, ये सब चीज. इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया यहाँ पर. नाउ आई विल गो थ्रू वेरी क्विकली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आगे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, ठीक है? ऑल राइट. सो तुमने देख लिया भाई, एसिड सॉइल्स आर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल नॉट बी अवेलेबल एट एसिडिक पीएच. सो नाउ यू सी
फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं एसिड सॉइल्स फॉर्म होने के कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स। सो पहला फैक्टर तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वेयर देयर इज एक्सेस रेनफॉल, ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल all these base forming cations, exchangeable cations are leached from the root zone. Okay, so wo jo negative charge bacha hua hai that will be replaced by hydrogen ions. So the colloidal complex is saturated with hydrogen ions and all these bases they are removed from the colloidal complex. That is why we have lower pH. So pH when it falls below 7 we call them as acidic soils. तो ये ज्यादा रेनफॉल वाले एरिया में होता है। तो इंडिया में तुमको कहाँ मिलेंगे, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पर तुमको एसिडिक सॉइल्स मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है एसिडिक सॉइल फॉर्मेशन का, लीचिंग। दूसरा पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल इज द रॉक। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारा रॉक जिससे तुम्हारा मिनरल मैटर बना है ना, 45% जो सॉइल कॉम्पोजिशन है उसमें 45% जो है वो वेटेज मिनरल मैटर का है, राइट। सो इट हैज ए यू कैन से सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर तुम्हारा रॉक एसिडिक है, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इज एन एसिडिक रॉक, हाँ सिलिका कंटेंट पे डिपेंड करता है, अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा है तो एसिडिक रॉक बोलते हैं उसको। सो लाइक ग्रेनाइट इफ इट इज द पेरेंट मटेरियल तो तुम्हारा सॉइल भी स्लाइटली एसिडिक होगा। अगर तुम्हारा पेरेंट मटेरियल अल्कलाइन है जैसे कि बसाल्ट है तो वहां पे तुम्हारा सॉइल पीएच ज्यादा होगा, अल्कलाइन की तरफ होगा। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल और द रॉक फ्रॉम विच द मिनरल मैटर इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग, उसका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। सो पेरेंट मटेरियल जैसे ग्रेनाइट है, एसिडिक है अगर तुम्हारा, तो वहां से जो सॉइल बनेगा उस मिनरल मैटर का इन्फ्लुएंस केमिकल प्रॉपर्टीज पे होगा। सो इफ द पेरेंट इज एसिडिक, पेरेंट मटेरियल इज एसिडिक, द सॉइल विल आल्सो बी एसिडिक। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, देन वी हैव माइक्रोबियल एक्शन। सो सॉइल में ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में क्या होगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर पानी के साथ मिलके ऑर्गेनिक तुम्हारा जो है कार्बोनिक एसिड बनता है। ये जो CO2 रिलीज हो रहा है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, वाटर एंड CO2 दे विल रिएक्ट एंड H2CO3 ए वेरी वीक एसिड इज फॉर्म्ड। ये ज्यादा एसिडिक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बट स्टिल इट इज अ वीक एसिड। फिर तुम्हारा सॉइल में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है तुम्हारा, अल्टीमेट प्रोडक्ट इज नाइट्रेट। सो ये जो नाइट्रेट है दिस फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड, है ना, NO3 माइनस HNO3, HNO3 बन गया नाइट्रिक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। फिर सल्फर ऑक्सीडेशन बैक्टीरिया है, सल्फर जो है सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फेट बनेगा। सल्फेट अगर तुम्हारा H+ion से मिलेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस व्हिच आर हैपनिंग इन द सॉइल that may also lead to production of acids. These acids can be weak acids or slightly stronger acids. तो वो भी एसिडिटी में ऐड करता है सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। ये वाला देखो, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। सो एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर में एक तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर में अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। अब तुम देखो यहाँ पर, सो दिस स्कीमेटिक डायग्राम, ये जो भी है इक्वेशन इज रिगार्डिंग दैट। सो तुम्हारा कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया था हम लोग कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स को ऐसे शीट की तरह बनाते हैं बिकॉज क्ले पार्टिकल्स हैव दिस शीट टाइप स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल केमिकली अगर बनाओगे तो बहुत सारे बॉन्ड्स कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए तुम सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से शीट बना सकते हो एंड दे हैव नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसके बदले में यहाँ पर इन्होंने ऐसा बना दिया है। सो दिस इज टेकन फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर
ये कोलोइडल कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. दे हैव नॉट शोन द नेगेटिव चार्ज बट यू कैन ड्रॉ इट. तो कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट. So base forming cations are present in the clay, but what will happen if you apply ammonium sulfate over a long period of time? तुम हर बार अमोनियम सल्फेट ही अप्लाई करते जा रहे हो सॉइल में, तो लॉन्ग टर्म चाहे 3-4 साल लगातार या 5 साल लगातार तुम अमोनियम सल्फेट अप्लाई करोगे तो क्या होगा? What will happen to the soil? So you see what happens जब अमोनियम सल्फेट ऐड किया. सो ये जो अमोनियम सल्फेट है, excess ammonium sulfate which is added to the soil in the form of fertilizer, the ammonium ions they will replace the calcium. So excess तुम्हारा जो भी अप्लाई कर रहे हो तुम fertilizer for over a long period of time, they will replace, ammonium ions will replace the calcium. तो कैल्शियम को रिप्लेस कर देंगे अमोनियम आयंस. तो देखो यहाँ पर कैल्शियम को अमोनियम आयंस ने रिप्लेस कर दिया. फिर ये कैल्शियम कहां जाएगा? देखो अमोनियम सल्फेट में जब सेपरेट होंगे, यू हैव अमोनियम आयंस एंड सल्फेट आयन, दो आयंस है. तो तुम्हारा जो है अमोनियम ने कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया, तो कैल्शियम जो है वो सॉइल सॉल्यूशन में आ गया. तो सॉइल सॉल्यूशन में तुम्हारे पास सल्फेट ऑलरेडी है, सो कैल्शियम विल रिएक्ट विथ सल्फेट आयन टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट. ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये सॉल्युबल है, इट कैन बी इजीली लीच्ड. ये फिर बारिश में अगर ज्यादा बारिश होता है वहां पर तो आराम से वो सॉइल सॉल्यूशन में से निकल जाएगा. इट विल गो बियॉन्ड द रूट जोन. सो कैल्शियम विल बी लीच्ड. तो तुम्हारे बेसिस इस तरह से लीच हो जाएंगे. अब ये जो अमोनियम आयन है यहां पर जो है, अब ये ऐसी थोड़ी ना बैठेगा. वी नो नाइट्रिफिकेशन, जो तुम्हारा नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हमको पता है. नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? अमोनियम आयन और अमोनिया, इट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट देन इनटू नाइट्रेट. तो ये नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया यहां पर काम कर रहा है, यहां पर नाइट्रोबैक्टर काम कर रहा है. अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट. तो ये नाइट्रिक एसिड बनेगा अल्टीमेटली. सो अमोनियम आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रिफिकेशन विल हैपन, नाइट्रिक एसिड विल बी फॉर्म. तो ये जो बाकी जो यहां से अमोनिया निकल गया और नाइट्रिक एसिड बन गया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? जगह बची हुई है, हाइड्रोजन आयंस विल ऑक्यूपाई. So your clay complex will be saturated with hydrogen ions. So this is how application of acidic fertilizer continuously for a long period of time can turn your soil acidic. All right. So that was the factors of formation of acidic soil. अच्छा आगे चलते हैं. Acidic soil का देख लिया हमने. Factors of formation of acidic soils कैसे बनते हैं. Now acidic soil से harm क्या है? How it is affecting the crop growth? हमने बोला है obviously problem soil तो कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी. Something is wrong with this soil. It is not able to support the plant growth. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? So what happens in acidic soil that is harmful to the crop? So how it is harming the crop or the plant? So first negative effect क्या है? So the plants which are growing in acidic soils, उनका cell membrane permeability disrupt हो जाता है. हमने बताया था, you already know, cell membranes are selectively permeable. They will allow only certain things to enter inside. They will not allow everything to go inside. कुछ चीजों को allow करते हैं, कुछ चीजों को वो allow नहीं करते. They will not allow the things to leak out of the cell membrane. So they are selectively permeable. अगर ये permeability जो है तुम्हारा selective permeability ये disrupt हो जाए, anything can enter and anything can be leaked into outside from the cell, तो तुम्हारा सेल का इंटीग्रिटी जो है that will be gone, right? तो membrane का जो selective permeability, that is most important you can say characteristic of cellular organisms.
सो सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी डिसरप्ट हो गया तो तुम्हारा सेल फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, इट विल बी डिसरप्टेड। दूसरा एसिड है भैया, टिश्यू डैमेज होता है, तुमने लैबोरेटरी में भी वर्क करा होगा तो ऑक्सीडाइज कर देता है, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स, मिनरल एसिड्स व्हिच आर फॉर्म। सो टिश्यू डैमेज हो जाता है तुम्हारा, रूट टिश्यू इट विल बी डैमेज्ड। न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, वी नो फास्फोरस फिक्सेशन हैपेंस एसिडिक सॉइल में, तुम्हारा insoluble compounds are formed with iron and aluminum, right? Because iron and aluminum are available in excess in acidic soils. Some nutrients are unavailable, है ना? So phosphorus, copper, zinc are unavailable. Iron, manganese and aluminum are available in excess quantity की toxicity हो जाता है उसकी वजह से। Beneficial effects of soil microorganisms are adversely affected, क्योंकि soil में microorganisms they play a very important role. क्या क्या रोल है? सी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन से शुरू करके organisms are involved in soil organic matter decomposition, nitrogen fixation, बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, then nitrification which is another important activity, sulfur oxidation। सो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं सॉइल में, एंड मोस्ट ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। पीएच अगर सॉइल का बहुत ज्यादा चेंज होता है तो ऑर्गेनिजम्स माइट नॉट सर्वाइव, सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच चेंज। सो एसिडिक सॉइल्स में माइक्रोबियल एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड, सो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देम बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम पीएच that may lead to death of the organisms। तो ये सारे जो तुम्हारे functions हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये डिसरप्ट हो जाएंगे। So acidic soils they are responsible for all these things, so which ultimately results in adverse plant growth, adverse impact on the plant growth। So इसीलिए acid soils में plants properly grow नहीं हो पाते, जिसकी वजह से तुम्हारा अल्टीमेटली yield इफेक्ट होता है। So acid soils are categorized as प्रॉब्लम सॉइल्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा ठीक है, हमने देख लिया क्यों प्रॉब्लम सॉइल से क्या करता है, वो सब देख लिया। चलो अब सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन यू डू टू रेमिडिएट। तो रिक्लेमेशन पार्ट पे आते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स। हाउ डू यू रिक्लेम एसिड सॉइल्स? सो एसिड सॉइल्स को कैसे रिक्लेम करोगे? सो फर्स्ट measure that you can take immediately is addition of liming material। so liming material जब तुम ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इज एग्जाम्पल ऑफ लाइमिंग मटेरियल। जब भी तुम ऐड करोगे तो एक्सेस कैल्शियम आयंस दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल। तो अभी हमने देखा था व्हाट विल हैपन, तुम्हारे सॉइल में हाइड्रोजन आयंस है। So when you add calcium carbonate in large quantities, what will happen? Calcium ion add कर रहे हो, so these hydrogen ions they will be replaced by calcium ions. Calcium ions will replace them. ठीक है, so liming material जब तुम add करते हो, calcium ions will replace the hydrogen ions. So addition of liming material, इसमें limestone use कर सकते हो, quick lime use कर सकते हो, calcium oxide, हाइड्रेटेड लाइम है CaOH ट्वाइस, या फिर डोलोमाइट है CaCO3 MgCO3, या फिर ऐसे CaMgCO3 ट्वाइस लिख सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, क्योंकि बल्क में चाहिए होता है तो कोई भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी मटेरियल। सो दैट इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट मेजर। दूसरा, बेसिक फर्टिलाइजर्स यूज करो। एसिडिक फर्टिलाइजर कंटिन्यूअसली ज्यादा यूज करोगे तो एसिडिक सॉइल बन जाएगा। बेसिक फर्टिलाइजर यूज करो, इफ योर सॉइल इज ऑलरेडी एसिडिक, यूज बेसिक सॉइल, सॉरी बेसिक फर्टिलाइजर। सो सोडियम नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, या फिर तुम बेसिक स्लैग यूज कर सकते हो। तो ये स्टील मेकिंग में, सो आयरन से जब स्टील बना रहे हैं तो टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर, तो अगर तुमको इम्प्यूरिटीज रिमूव करना है, सो हम लोग
टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज, ओर को प्रोसेसिंग करते समय वी एड लॉट ऑफ लाइमिंग मटेरियल, ताकि वो इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर सके। ओके, सो फ्रॉथ के फॉर्म में इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो जाते हैं। सो फॉर डूइंग दैट वी एड many liming materials during the process of steel making. So वो impurities को remove करने के लिए हम जब लाइमिंग मटेरियल बनाते हैं, तो अल्टीमेटली जब सारे impurities जो तुम्हारा स्टील बन जाता है, तो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, दैट इज स्लैग। तो इस स्लैग में बहुत सारे बेसिस होते हैं। सो तुम बेसिक स्लैग जो स्टील इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, उसको तुम यूज कर सकते हो एज फर्टिलाइजर। सो बेसिक स्लैग या सोडियम नाइट्रेट कैन बी यूज्ड, विच आर बेसिक फर्टिलाइजर्स। और कैसे कर सकते हो भाई? सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो। देखो, एक्सेस वाटर अगर डालोगे तो लीचिंग होगा, तो बेसिस निकल जाएंगे। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में इरिगेशन करो। सो डू नॉट अप्लाई इरिगेशन वाटर इन एक्सेस सो दैट लीचिंग माइट हैपन। तो लीचिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू वांट टू कीप द बेसिस इन द सॉइल। हाँ, वरना रूट जोन के बियॉन्ड वो लीच हो जाएगा एंड सॉइल विल टर्न एसिडिक। चल ठीक है, अब कुछ भी नहीं कर सकते। इन केस यू कैनॉट डू एनीथिंग, लाइमिंग मटेरियल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? वी कैन ग्रो acid tolerant crops. So there are certain crops which can tolerate certain amount of acidity. So grow acid tolerant crops. तो moderately tolerant crops कौन से हैं? Maize, brinjal, wheat, barley, they can tolerate acidity to moderate extent, यानी 6.5 से 5 के बीच का acidity को tolerate कर सकता है। Highly acid tolerant में we have potato, rice, oats, sweet potato, etc., which can tolerate even higher acidity. 3.4 pH तक भी वो टॉलरेट कर सकता है। So highly tolerant crops, moderately tolerant crops. So these are the reclamation measures of acidic soils. चलो, acid soils कवर कर लिया हम लोगों ने। Now let us go to other problematic soils. Now इसमें हम लोग saline and alkali soils कवर करेंगे। Okay, saline and alkali soils are those soils which have a pH higher than 7. Acidic soils में pH lower than 7 था। saline alkali soils में, saline soils and alkali soils में pH is greater than 7 in both cases. saline soils में भी, alkali soils में भी 7 से ज्यादा pH है। अच्छा, so क्या डिफरेंस है saline और alkali soils में? नाम में ही है, it is in the name itself. So saline soils जो है, saline soils they contain excess amount of salt. Excess amount of salt is present. कौन सा salt है? Salts of sodium, sodium chlorides, chlorides of sodium, या फिर सल्फेट, सल्फेट salts of sodium, या फिर नाइट्रेट, या फिर कार्बोनेट। कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट बेसिकली। सो ये सॉल्ट्स अगर एक्सेस क्वांटिटी में है, दो सॉइल्स आर कॉल्ड एज saline soil. So presence of salt in excess amount, such soils are known as saline soils. अच्छा, अगर तुम्हारा क्ले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ज्यादा नहीं है, सॉल्ट्स माइट बी देयर और माइट नॉट बी देयर, बट अगर तुम्हारा क्ले कॉम्प्लेक्स जो है, सॉइल कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स या सॉइल क्ले कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, इफ इट इज सैचुरेटेड विथ सोडियम, अगर तुम्हारा सॉइल में क्ले कॉम्प्लेक्स जो है वो सोडियम से सैचुरेटेड है, सच सॉइल्स आर नोन एज अल्कली सॉइल्स। ऐसे सॉइल को हम लोग अल्कली बोलते हैं। सॉल्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, अगर सॉल्ट है भी तो मेनली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है तुम्हारा सॉल्ट होता है,
if salt is there, sodium carbonate के फॉर्म में होता है mainly, and clay colloidal complex, it is saturated with sodium. Such soils are known as alkali soils. Salt may or may not be present, but clay complex is saturated. जो सलाइन सॉइल है, सलाइन सॉइल में सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन क्ले कॉम्प्लेक्स जो है ना वो अभी तक पूरा सैचुरेट नहीं हुआ है सोडियम से. इट इज नॉट येट टोटली सैचुरेटेड विद सोडियम. सोडियम तो है, सोडियम के अलावा यहां पे दूसरे सॉल्ट्स भी हैं, दूसरे आयोन्स भी हैं. अदर आयोन्स आर आल्सो देयर. सोडियम इज देयर, but along with sodium other ions are also present. It is not totally saturated with sodium. सोडियम के अलावा दूसरे आयन्स भी हैं. ये सलाइन सॉइल्स में, सलाइन सॉइल्स में सॉल्ट्स आर देयर, एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट्स हैं, एंड देयर क्ले कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अदर बेस फॉर्मिंग आयन्स आल्सो. सोडियम आयन्स भी हैं, बेस फॉर्मिंग आयन्स भी हैं, अदर कैल्शियम मैग्नीशियम वो भी हैं. इट इज नॉट टोटली सैचुरेटेड विद सोडियम. ये सलाइन सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है. अल्कली सॉइल्स में सॉल्ट्स जनरली आर वेरी लेस. अगर जो भी है सॉल्ट वो सोडियम कार्बोनेट होता है, एंड द clay complex is saturated with sodium. So this is alkali soil, this is saline soil. ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको saline alkali soil में. We will see other characteristics also. So saline soils, they contain excess of sodium salt, sodium chlorides. कोई भी हो सकता है, सारे होंगे ऐसा जरूरत नहीं है. Any of these salts can be present or all of them can be present. Chlorides, sulfates, carbonates and nitrates of sodium, but its colloidal material is not yet sodiumized. यानी पूरा अभी सोडियम से सैचुरेट नहीं हुआ है. उसके साथ साथ सोडियम के अलावा दूसरे आयन्स भी हैं, अदर आयन्स आर आल्सो प्रेजेंट. देन alkali soils में क्या है? exchangeable complex contain appreciable quantities of exchangeable sodium. तो सोडियम आयन्स ऑलमोस्ट पूरा क्ले कॉम्प्लेक्स को सैचुरेट कर सकते हैं. Salts may or may not be present, but sodium ions, they have almost saturated the clay complex. ये important characteristic है तुम्हारा alkali soil का. ठीक है. अच्छा, salt may or may not be present बोला था, तो तुम्हारे पास saline soils हैं which have excess salts, but clay complex is not yet sodiumized or not yet saturated with sodium. Then you have alkali soils जिसमें salts हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर salt है तो mainly ये कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, but clay complex is almost saturated. इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी है. There is another category which is somewhere in the transition between these two categories. इन दोनों के बीच का एक और कैटेगरी है which is called as saline alkali. So here clay complex is almost saturated and it also have excess salt. यानी ये saline से alkali में transition हो रहा है, somewhere in between the saline and alkali soils. So saline alkali soil से salts निकाल दोगे तो क्या बचेगा? alkali बचेगा. ठीक है. So it is somewhere in transition between the saline and alkali soils. So it contains appreciable quantities of sodium in the clay complex and also have excess salt. That is saline alkali soil. इसके properties भी दोनों के बीच में होते हैं हमेशा. ठीक है. So now let us look at the characteristics of saline soils, alkali soils and saline alkali soil. एक बार देख लेते हैं. ठीक है. So first saline soil, if you see saline soil का जो pH है, pH is less than 8.5. तो ये जो तुम्हारे पैरामीटर्स हैं याद रख लेना. pH जो है 8.5 से ज्यादा या कम या 8.5 होगा. बाद में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्ट. सॉल्ट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा. ओके, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आयंस जो है ना, फ्री आयंस इलेक्ट्रॉन, दे कैरी द चार्ज. सो ज्यादा सॉल्ट होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा. कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टेंस, राइट? रेसिस्टेंस का ओम यूनिट है तो यहां मो है, उल्टा मो. ठीक है. कंडक्टिविटी जो है मो.
4 मिलीमोस पर सेंटीमीटर, तो 4 से ज्यादा या कम, 4 यहां याद रख लेना, पीएच में 8.5। एंड लास्ट इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला यह है कि जितने भी बाकी पॉजिटिव आयॉन्स हैं सोडियम को मिला के, उनके कंपैरिजन में सोडियम कितना है। सो सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस पोटेशियम प्लस सोडियम इनटू 100। सो आउट ऑफ ऑल द आयॉन्स हाउ मच इज सोडियम, सोडियम का परसेंटेज कितना है बाकी आयॉन्स के कंपैरिजन में। सो दैट इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। सो वो 15, सो 15 8.54, ये नंबर याद रखना, सिंपल है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमको लिखने के लिए बोले कि सलाइन सॉइल्स और अल्कली सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन दीस पॉइंट्स। उसके बाद वो कैसा सॉइल्स बिहेव करता है उसके बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट्स लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो सलाइन सॉइल्स में जाओगे तो पीएच इज लेस देन 8.5। अब सलाइन सॉइल है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा, सॉइल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर देन 4 मिलीमोस पर सेंटीमीटर, 4 से ज्यादा है क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। अब देखो यहां पर सोडियम, हमने क्या बोला था, सलाइन सॉइल में सोडियम अभी टोटली सैचुरेट नहीं किया है, सोडियम इज देयर बट उसके साथ साथ कैल्शियम मैग्नीशियम अदर आयॉन्स आर आल्सो देयर, तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है इट विल बी लेस देन 15%, लेस देन 15%। अब अल्कली सॉइल्स में इसका रिवर्स है। अल्कली सॉइल्स में अगर तुम देखोगे पीएच विल बी मोर देन 8। अगर तुमको सलाइन याद है तो अल्कली सॉइल ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स, अल्कली सॉइल में मोर देन 8.5 होगा पीएच। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो, अल्कली सॉइल में क्या बोलते हैं, सॉल्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट जनरली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज देयर, वो भी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होगा एंड जनरली वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट विल बी देयर। तो कम सॉल्ट है तो कंडक्टिविटी भी कम होगा, लेस देन 4 मिलीमोस। एंड एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स इज सैचुरेटेड विद सोडियम, सोडियम बहुत ज्यादा है तो इट विल बी मोर देन 15%, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज विल बी मोर देन 15%। सो एकदम रिवर्स है, सलाइन सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एकदम रिवर्स हमारा अल्कली सॉइल। सलाइन अल्कली सॉइल बताया था इट इज समवेयर इन द ट्रांजिशन बिटवीन सलाइन एंड अल्कली सॉइल्स, वो सलाइन अल्कली के बीच में है कहीं पे। तो यहां पर जो पीएच है वो 8.5 है। अब बोला था सलाइन अल्कली नाम में ही है ना, सॉल्ट है इसमें, it contains appreciable quantities of salt, so electrical conductivity will be higher, more than 4 millimos। and हमने क्या बोला था, अल्कली भी है, ये सलाइन है अल्कली भी है, it has appreciable quantities of sodium, so 15 से ज्यादा होगा। अल्कली सॉइल में ज्यादा ESP होगा, दोनों 15 से ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा, but they are both more than 15। तो इसका शायद से 40 हो सकता है, यहाँ पर 20 हो सकता है, लेकिन दोनों 15 से ऊपर है। ओके, so those are the characteristics of saline alkali soil, ये याद रख लेना टेबल, you have to mention these characteristics। अच्छा आ जाओ अब, how these saline and alkali soils are formed। so saline alkali soils कैसे बनते हैं, what are the important factors behind the formation of saline alkali soils। तो पहला जो फैक्टर है एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। अब एसिड सॉइल्स कहां पर फॉर्म होते हैं, जहां पर एक्सेस रेनफॉल होता है, तो दैट रेनफॉल विल लीच, द वाटर विल लीच द सॉल्ट्स और द बेस फॉर्मिंग आयंस बिलो द रूट जोन। एरिड रीजन में बारिश ही नहीं होती, सो जो भी तुम्हारा रॉक्स है, पेरेंट मटेरियल है, इट विल वेदर, जो वेदर्ड मटेरियल है इट में कंटेन सॉल्ट, बट बारिश नहीं हो रही, देयर इज नॉट इनफ वाटर टू लीच दिस सॉल्ट, सो ऑल द सॉल्ट्स विल बी इन द सरफेस लेयर, तो salts will accumulate on the surface। so arid and semi-arid climate is the first important reason for the formation of saline alkali soils। second, poor drainage। देखो suppose there is this area which has basin like topography, so बारिश हुआ, from rest of the region water it came as runoff और यहां पर आके वाटर एक्यूमुलेट हो गया। ओके, सो वाटर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रीजन ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट केम टू दिस बेसिन एंड एक्यूमुलेटेड हियर। अब जब वाटर आ रहा है तो बहुत जगह से सॉल्ट्स को डिसॉल्व करके ला रहा होगा, तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, सो ओवर द ईयर्स रिवर्स
दे हैव ब्रॉट लॉट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द लैंड. रिवर जब सॉइल के ऊपर से जा रहा है तो इट विल बी डिसॉल्विंग मेनी मिनरल्स, जो भी सॉल्युबल मिनरल्स हैं उन सबको डिसॉल्व करके समुद्र में अल्टीमेटली डंप कर रहा है. सो सैलिनिटी जो रीजन है वो मेन रीजन वो है कि रिवर्स जो है तुम्हारा लैंड के ऊपर से सॉल्ट को डिसॉल्व करके लेके जाके समुद्र में डंप कर रही है. सो जब तुम्हारा बारिश का पानी एक्यूमुलेट होता है किसी लो लाइंग एरिया में, सो वाटर व्हेन इट इज कमिंग टू दिस डिप्रेशन इट विल बी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ सॉल्ट विद इट. पर अगर यहां पर प्रॉपर ड्रेनेज है, अगर यहां से तुम्हारा पानी नीचे चले जाता है वाटर टेबल में, then there is no problem. But if there is a problem of drainage, अगर यहां पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है यानी इजीली पानी मूव नहीं कर रहा है, there is restricted movement, water is not moving, what will happen? Water might move up till certain distance, यहां तक आकर यहां पर आकर रुक जाता है पानी, इससे ज्यादा मूव नहीं कर सकता. So after a while what will happen? Evaporation will happen, पानी सारा evaporate हो जाएगा. पर जो पानी नीचे गया है अंदर, it will bring salts to the lower region. यहाँ पर लोअर लेयर में यहाँ पर सॉल्ट लाके जमा कर देगा. पानी तो वहां पर इवापोरेट हो जाएगा लेकिन सॉल्ट जमा हो जाएगा. सो इट माइट हैपन ओवर ईयर्स एंड दिस एंटायर एरिया माइट बिकम सलाइन. तो वो भी हो सकता है. देन हाई वाटर टेबल. सो इन एरिड रीजन्स, सो एरिड रीजन्स में तुम्हारा जो ग्राउंड वाटर है it is generally saline, especially if the arid region is near coast. वहां पर क्या है, salt water intrusion होता है अगर coastal region में है. ओके, तो सपोज ये तुम्हारा यहाँ पे लैंड, यहां से लैंड ऐसे खत्म हो रहा है, यहां पर तुम्हारा ओशन वाटर है. तो दिस इज ओशन वाटर, राइट. सो फ्रेश वाटर यहां पर है, ये एक्विफर, फ्रेश वाटर एक्विफर. तो देयर इज ए कांस्टेंट टसल बिटवीन द, तो ये मिक्स नहीं होता है वाटर इजीली क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है. सो ग्राउंड वाटर एंड सी वाटर, देयर इज ए बैरियर और यू कैन से देयर इज ए इंटरमीडिएट जोन. तो यहां पर एक जोन है जहां पर पानी मिक्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डेंसिटीज. बट अगर तुम्हारा वाटर टेबल यहां पर कंटिन्यूअसली लो हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी द ओशन वाटर विल पुश दिस जोन टुवर्ड्स द वाटर टेबल. तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होने का चांसेस है स्पेशली इन द कोस्टल रीजन, एरिड एरियाज में, कोस्टल रीजन में ग्राउंड वाटर में तुम्हारा सॉल्ट वाटर इंट्रूजन बहुत कॉमन फिनोमिना है. स्पेशली इफ ग्राउंड वाटर इज एक्सप्लॉइटेड और तुम्हारा वाटर टेबल बहुत लो हो गया है तो सॉल्ट वाटर कैन इजीली एंटर इनटू द वाटर टेबल एंड तुम्हारा पूरा जो ग्राउंड वाटर है वो सलाइन हो जाएगा. सो स्पेशली इन एरियाज वेयर वाटर टेबल इज हाई, वाटर टेबल हाई माने 2 से 3 मीटर के अंदर तुमको पानी मिल जाएगा, 2 to 3 मीटर्स में तुमको पानी मिल जाएगा. तो यहां पर क्या होता है, तुम्हारा जो अनकन्फाइंड एक्विफर है वाटर टेबल, इट इज कनेक्टेड टू द सरफेस थ्रू पोर्स. तुम्हारा जो मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स है दे कनेक्ट सरफेस ऑफ द सॉइल टू द वाटर टेबल. ये पोर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है. सो स्पेशली इन एरिड एरियाज वेयर द ग्राउंड वाटर इज ऑलरेडी सलाइन इन द कोस्टल रीजन्स, वहां पर तुम्हारा जो ग्राउंड वाटर है अगर वो पोर्स के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो गया सरफेस पे तो यहां से कंटिन्यूअसली वाटर विल मूव थ्रू द कैपिलरीज एंड वाटर विल इवापोरेट बिफोर इट रीचेस द सरफेस. और यहां पर इवापोरेट होने टाइम यहां पर सॉल्ट जमा कर देगा क्योंकि ग्राउंड वाटर में बहुत सारा सॉल्ट है. सो व्हेन द वाटर moves through these capillary pores and reaches the surface, water will evaporate and leaves lot of salt on the surface. तो ग्राउंड वाटर टेबल जहां पर बहुत हाई है, especially in arid areas where due to salt water intrusion in the coastal regions the ground water has become saline. अगर वहां पर वाटर टेबल हाई है तो वहां पर through these pores water will move to the surface and it will evaporate leaving the salts behind. वो भी एक रीजन है सलाइन सॉल्ट्स का, सॉरी सलाइन सॉइल्स का.
सलाइन सॉइल फॉर्मेशन का एरिड रीजन्स में स्पेशली। देन ओवरफ्लो ऑफ सी वाटर एंड ओवर द लैंड। सो मैं उन रीजन्स की बात कर रहा हूं जो टाइडल रीजन्स के नीचे आते हैं। सो दोस टाइडल रीजन्स, हाई टाइड, लो टाइड में, हाई टाइड में पानी आ जाता है बट लो टाइड में नीचे चला जाता है। सो दैट रीजन विच इज द टाइडल जोन, वहां पर तुम्हारा जो है ड्यू टू द कंटिन्यूअस इनंडेशन विथ सॉल्ट वाटर, सी वाटर, द सॉइल बिकम्स सलाइन, वो भी एक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। अगर तुम एरिड रीजन्स में स्पेशली वेयर वाटर टेबल इज हाई, ये तुम्हारा सॉइल सरफेस है, ये वाटर टेबल है, यहाँ पर सलाइन सॉइल है, ऑलरेडी सॉल्ट वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर इज ऑलरेडी सलाइन। यहाँ पर तुम इवन फ्रेश वाटर अगर तुम ऐड कर देते हो, सो दिस फ्रेश वाटर विच इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, दिस फ्रेश वाटर विल मूव थ्रू द सॉइल पोर्स एंड दीज विल कनेक्ट टू द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। तो ऊपर से नीचे आ सकता है थ्रू द पोर्स, तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर कैन ऑल्सो डेवलप सैलिनिटी इन द एरिड एरियाज। जो तुम्हारा इंदिरा गांधी कैनाल है, नॉर्दर्न पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ जो तुम्हारा राजस्थान है, वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बनने के बाद बहुत सारा एरिया सलाइन बन गया है। इवन इफ यू इंट्रोड्यूस फ्रेश वाटर, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सलाइन सॉइल्स। देन सॉल्ट्स ब्लोन बाय विंड। सो समुंदर की तरफ से जो विंड आ रहा है तुम्हारा, सी ब्रीज, समुंदर की तरफ से जो हवा आ रही है, इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ सॉल्ट इन द एयर। सो राजस्थान का वन सॉइल जो है सलाइन होने का वन ऑफ द रीजन, सो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सलाइन सॉइल इन दैट रीजन इज सॉल्ट्स विच आर ब्लोन बाय द विंड। अरेबियन सी से जो तुम्हारा विंड आ रहा है, इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ सॉल्ट, एंड ये जब आके एक्यूमुलेट हो जाएगा सॉइल के ऊपर और बारिश भी नहीं होगी उसको निकालने के लिए, सो अगेन इफ देयर इज इनफ रेनफॉल, द सॉल्ट्स विल बी अगेन वॉश्ड बैक इनटू द ओशन। पर अगर ज्यादा बारिश नहीं होती है तो द सॉल्ट्स विल एक्यूमुलेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन पेरेंट मटेरियल, अगर तुम्हारा पेरेंट मटेरियल या रॉक जिसकी वेदरिंग से तुम्हारा मिनरल मटेरियल आया है, अगर वो तुम्हारा अल्कलाइन है, जैसे बसाल्ट सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल, दे हैव अ हायर पीएच बिकॉज ब्लैक कॉटन सॉइल इज मेड फ्रॉम बसाल्ट। बसाल्ट से ही तुम्हारा ब्लैक कॉटन सॉइल आया है वेदरिंग से। सो पेरेंट मटेरियल अगर तुम्हारा बेसिक है तो तुम्हारा सॉइल भी बेसिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा। पेरेंट मटेरियल अगर एसिडिक होगा तो सॉइल भी एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट से बना है तो रेड सॉइल विच हैज ए लोअर पीएच, ग्रेनाइटिक। देन एक्सेसिव यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर। अगर तुम बेसिक फर्टिलाइजर सच एज सोडियम नाइट्रेट तुम एक्सेसिव यूज करोगे कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करोगे तो सॉइल एसिडिक बन जाता है। बेसिक फर्टिलाइजर अगर तुम यूज करोगे तो कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, तो सॉइल विल आल्सो बिकम अल्कलाइन। ठीक है, वो भी एक रीजन है। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सलाइन एंड अल्कली सॉइल। चलो ठीक है, अच्छा अब सलाइन अल्कली सॉइल्स को प्रॉब्लम सॉइल्स क्यों बोलते हैं? कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना। सो व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट, डिटरमिनेंटल इफेक्ट क्या होता है प्लांट्स के ऊपर या क्रॉप के ऊपर? So what are the detrimental effects of these saline and alkali soils on the crop? All right, that is why they are problematic soils. कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा। So first saline soils, बाद में alkali soils। ठीक है, पहले saline soil के detrimental effects देख लेते हैं। So what happens if the soil is very saline? एक तो pH तुम्हारा ज्यादा होगा। So pH ज्यादा होगा तो nutrients available नहीं होंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट, वो तो दोनों में है, पीएच इज मोर देन 7 इन बोथ केसेस, बट सलाइन सॉइल्स में मेन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्ट है। एक्सेसिव सॉल्ट इज प्रेजेंट। सो व्हेन एक्सेस सॉल्ट इज प्रेजेंट, सो देयर इज ए प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सो तुम्हारा जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूजन, नॉर्मल तुम्हारा जो है सेल मेम्ब्रेन है तो वो परमेबल है, तो ऑस्मोसिस बेसिकली बोल सकते हो, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल लेयर। सो ऑस्मोसिस हो रहा है। सो अगर सपोज बाहर तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज यहां पर है तुम्हारा, ये आउटर एनवायरनमेंट है, सपोज सॉइल है, और ये तुम्हारा रूट हेयर है, सेल है, तो प्लांट के अंदर, रूट हेयर के अंदर 10 ppm कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, प्लांट
सेल के अंदर 10 ppm कॉन्सेंट्रेशन, बाहर तुम्हारा बहुत ज्यादा सलाइन नेचर है, सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, बाहर तुम्हारा 100 ppm है, सपोज बहुत ज्यादा सलाइन सॉइल है तो 100 ppm है, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? सो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, एंड वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, या फिर लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव होगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर, सो वाटर विल मूव फ्रॉम द प्लांट सेल टू द आउटर एनवायरमेंट। तो भैया प्लांट को तो एब्जॉर्ब करना है ना पानी, पानी देना थोड़ी ना है। सो दिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो एंड प्ले इन द सी वाटर। समुद्र के पानी में तो थोड़ी देर खेल के आओगे ना, तुम्हारे बॉडी से वाटर लॉस होगा, बिकॉज समुद्र का पानी ज्यादा सलाइन है, आउटर एनवायरमेंट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर, तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा वाटर लॉस होता है, इसलिए समुद्र में थोड़ी देर खेलोगे ना प्यास लगती है बहुत, बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। सो सेम थिंग हैपेंस, तो प्लांट हैज टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पर यहां तो उल्टा होगा, अगर बाहर ज्यादा सलाइन है तो रिवर्स प्रोसेस विल कंटिन्यू, राइट? सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इफ सॉइल इज सलाइन, वो मेन प्रॉब्लम है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरा, डायरेक्टली सॉल्ट हैज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द प्लांट टिश्यू, प्लांट्स के सेल पे डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है सॉल्ट्स का, और पहला इफेक्ट क्या है? इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन हाईली सलाइन कंडीशन, तो वो सलाइन सॉइल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए प्लांट्स वहां पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। चलो जी, अल्कली सॉइल्स का क्या डिटरमिनेंटल इफेक्ट होता है? ना अल्कली सॉइल्स पे क्या है? पहला जो मेन प्रॉब्लम है अल्कली सॉइल के साथ, मैं यहां पर बाद में आता हूं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर है ना डिस्पर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो ये पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट जो डिस्पर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस हाउ इट हैपेंस। सॉइल पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी तुम्हारा जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले, दे आर ब्रॉट टुगेदर बाय बाइंडिंग मटेरियल लाइक स्टिकी मटेरियल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जिससे वो सैंड, सिल्ट एंड क्ले को बाइंड करता है, एंड hydroxides of aluminum and iron, they also act as cementing agents. फिर clay particles का adhesion and cohesion properties, they also are helpful in binding these particles. तो sand, silt and clay मिलके एक लड्डू जैसा बनाते हैं to form a secondary particle. These are called as PEDs, aggregates बोलते हैं. So these aggregates join together to form soil structure. तो ये जो aggregates हैं वो break हो जाते हैं, यानी तुम्हारा sand, silt and clay particles they will separate. तो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है सॉइल का। सॉइल का स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय होगा तो मैक्रोपोर्स, तुम्हारा जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल एरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉपर एरेशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि पोर्स आर ब्लॉक्ड, पोरोसिटी इज रिड्यूस्ड, एरेशन विल बी रिड्यूस्ड, वाटर लॉगिंग होने का चांस रहेगा, ओके, माइक्रोबियल ग्रोथ भी इफेक्ट होगा, प्लांट रूट्स दे विल नॉट गेट ऑक्सीजन, सो ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल विल बी अफेक्टेड if the soil particles are dispersed. Sand, silt and clay particle अगर डिस्पर्स हो जाते हैं तो तुम्हारा सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, एरेशन नहीं होगा, तो प्रॉपर प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो ये डिस्पर्शन क्यों होता है? सो यू सी योर क्ले पार्टिकल्स जो है तुम्हारे, कैल्शियम जो है, कैल्शियम 2+ है, सो कैल्शियम का जो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इट कैन सेटिस्फाई 2 नेगेटिव चार्जेस ऑन द 2 क्ले पार्टिकल्स। तो कैल्शियम जो है ये एक तरह से तुम बोल सकते हो बाइंडिंग या फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट है, सो पार्टिकल्स को बाइंड करने में हेल्प करता है कैल्शियम, इट कैन ब्रिंग 2 क्ले पार्टिकल्स टुगेदर। एल्यूमिनियम इवन हायर बाइंडिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो 3 है वैलेंसी, तो इट कैन bind to 3 clay particles. तो इसीलिए एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट्स की तरह यूज करते हैं। सो दीज फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट्स विल सेटल द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो पानी के अंदर जो सस्पेंडेड मटेरियल है वो फ्लोट करता रहता है बहुत देर तक। अगर
फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डालोगे तो दीज पार्टिकल्स विल कम टुगेदर, दे विल बी ऑफ हायर वेट एंड ज्यादा वेट होगा तो वो सेटल हो जाएगा. तो सेटलमेंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड, उनके लिए हम लोग फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं जो एल्यूमिनियम कॉम्पाउंड्स हैं. तो अगर ऐसा है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, दे आर फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, वो पार्टिकल्स को साथ पे लाकर बाइंड करने का काम करते हैं. पर सोडियम का जो है ना वो उल्टा काम है. सोडियम क्या होता है, सपोज तुम्हारा क्ले पार्टिकल है, यहां पे सोडियम है, ठीक है. सो सोडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, सोडियम का ना डेलिक्विसेंट नेचर है, ये वाटर लविंग, पानी को ज्यादा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है. हाँ, सो यहां पर क्या है, so due to the higher electronegativity of the oxygen, water molecule में you have higher electronegative oxygen and hydrogen, H2O, right? So higher electronegativity of the oxygen will not allow any other negative charge to come nearby. और कोई पार्टिकल को आसपास आने भी नहीं देता जिसका नेगेटिव चार्ज है. So sodium will attract oxygen molecules, and these oxygen molecules, sodium will attract water molecules, and these water molecules which are carrying higher electronegative atom like oxygen, it will not allow any other negative charge to come nearby. तो डिफ्लेक्ट करता है, कोई और नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, सिमिलर पोल्स दे विल रिपेल ईच अदर. सो नेगेटिव चार्ज ऑफ द electronegative atom, oxygen atom, will repel the clay particles away from the सोडियम आयन. तो ये जो सोडियम आयन एक्सेस में अगर होगा तो क्ले पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से, बाइंड नहीं होते, दे रिपेल ईच अदर, दे डिस्पर्स द सॉइल पार्टिकल्स. एग्रीगेट्स विल ब्रेक इनटू सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इंडिविजुअल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है. सो दैट विल अफेक्ट द सॉइल. जो अगर सारे पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे, सपोज तुम्हारा जो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स, ये एग्रीगेट ऐसे है, एग्रीगेट अगर बनेंगे तो यू हैव एग्रीगेट्स के बीच में अगेन पोर्स, तो एग्रीगेट के अंदर भी है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले मिलके एग्रीगेट बना है. तो इनके बीच का जो पोरोसिटी है दैट इज माइक्रोपोर्स, ये माइक्रोपोर है. और दो बड़े एग्रीगेट्स के बीच में जो ज्यादा डायमीटर है, जहां पर ज्यादा डायमीटर है, दिस इज द मैक्रोपोर. सो मैक्रोपोर में एयर होता है, माइक्रोपोर कंटेन्स वाटर. दोनों जरूरी हैं, पर अगर ये एग्रीगेट ब्रेक हो जाएंगे, इफ दे ब्रेक, तो ये तुम्हारा मैक्रोपोर्स कम हो जाएगा. इफ दे ब्रेक व्हाट विल हैपन, सैंड, सिल्ट एंड क्ले सब पास पास हैं, अब एग्रीगेट सब ब्रेक हो गए. सो नाउ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, डेंसिटी बढ़ गया, जो मैक्रोपोर्स था वो सब गायब हो गया. अब देयर आर नो मैक्रोपोर्स, सो देयर इज नो एरेशन, एरेशन नहीं होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, हाँ, वाटर लॉगिंग होने का चांस है. सो उससे तुम्हारा सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, डिस्पर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज डन बाय सोडियम आयंस. अगर एक्सेस सोडियम आयंस है तो सॉइल पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे, दैट विल affect the soil physical properties like aeration, porosity, bulk density, ultimately affecting the plant growth. अच्छा, अब अगर तुम पूछते हो कि सर सलाइन सॉइल ज्यादा हार्मफुल है प्लांट ग्रोथ के लिए, अल्कली सॉइल ज्यादा हार्मफुल है? सो अल्कली सॉइल्स आर मोर हार्मफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ. क्यों? सलाइन सॉइल में फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अभी तक मेंटेन्ड है ना, क्योंकि सोडियम के अलावा दूसरे पार्टिकल्स भी हैं बाइंडिंग, जो बाइंड करते हैं. द क्ले कॉम्प्लेक्स इज नॉट टोटली सैचुरेटेड विद सोडियम. सलाइन सॉइल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम वो भी हैं. सो वहां पर सॉइल स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन्ड है सलाइन सॉइल्स में. सो ऐसे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो जो सॉल्ट टॉलरेंट है. सो दोज क्रॉप्स व्हिच कैन टॉलरेट सैलिनिटी, उनको ग्रो कर सकते हो. पर अल्कली सॉइल में तुम्हारा एग्रीगेट्स ब्रेक हो गया, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स सेपरेट हो गए, उससे क्या होगा? एरेशन नहीं मिलेगा, पोरोसिटी कम हो जाएगी, बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी, रूट ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होगा, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वाटर लॉगिंग होगा. तो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो रहे हैं सॉइल के. हाँ, सो यहां पर अगर सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप भी होगा वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि
एरेशन तो चाहिए ना किसी भी क्रॉप के लिए। सो अल्कली सॉइल्स में क्रॉप ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। सलाइन सॉइल में फिर भी क्रॉप ग्रोथ हो जाएगा, टॉलरेंट क्रॉप्स का। सो अल्कली सॉइल्स आर मोर हार्मफुल बिकॉज सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड। सलाइन सॉइल में फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटैक्ट, सो इफ यू कैन ब्रिंग ए सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी इट कैन ग्रो नॉर्मली। बट अल्कली सॉइल में तो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज डैमेज हो गए, तो अल्कली सॉइल्स आर मोर हार्मफुल कंपेयर टू सलाइन सॉइल्स। ठीक है, एक और होता है, most of the nutrients they are available at neutral pH. So nutrients like phosphorus, calcium, nitrogen, iron, copper, manganese, zinc, ये सब unavailable होंगे at alkali pH, they are unavailable, है ना। molybdenum available होगा लेकिन बाकी वाले unavailable होंगे because majority of the nutrients are available at neutral pH. तो these are the harmful effects of saline alkali soil. अच्छा, अब सलाइन सॉइल्स को कैसे रिक्लेम करोगे? सलाइन फिर अल्कली सॉइल्स का रिक्लेमेशन देखेंगे। सो हाउ डू यू रिक्लेम द सलाइन सॉइल्स? रिक्लेमेशन तो जनरली ये क्वेश्चन में इंक्लूड होता है, व्हाट आर सलाइन सॉइल्स एंड अल्कली सॉइल्स, हाउ डू यू रिक्लेम द सलाइन अल्कली सॉइल्स, ऐसे पूछेंगे। या फिर व्हाट आर अल्कली सॉइल्स, सलाइन अल्कली पे ही क्वेश्चन आता है और उनका रिक्लेमेशन डेफिनेटली क्वेश्चन में पूछता है। सो फ्लडिंग एंड लीचिंग डाउन द सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि तुम क्या करोगे, जो भी सॉल्ट्स है उनको लीच कर दो। कैसे लीच करोगे? सपोज तुम्हारा फील्ड है ऐसे, योर फील्ड, यू हैव बंड्स, फील्ड में बंड्स हैं चारों तरफ। व्हाट यू विल डू, यू इंपाउंड वाटर, पानी डालो बहुत सारा, ओके, अप टू 10 सेंटीमीटर हाइट, पानी से भर दो पूरा, इंपाउंड कर दो एंड लेट इट स्टे। 1-2 दिन के लिए पानी को रखो। फिर क्या होगा, जो भी सॉल्ट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में एंड दे विल लीच टू द लोअर लेयर्स। तो सॉइल में लोअर लेयर्स में, बियॉन्ड द रूट जोन, तुमको रूट जोन के नीचे लेके जाना है। रूट जोन तक अगर तुम्हारा सेफ है तो ठीक है, प्लांट ग्रोथ विल हैपन नॉर्मली। रूट जोन के बियॉन्ड 1-2 मीटर नीचे तुमको पूरा सॉल्ट्स को लेके जाना है 2 मीटर नीचे। तो रूट जोन में अगर नहीं होगा तो सॉल्ट्स, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो ऐसे भर दो पूरा और एक दिन वेट करो, फिर पूरा जो भी सॉल्ट्स हैं वो डिसॉल्व होके नीचे चले जाएंगे, इट विल गो बियॉन्ड द रूट जोन। ऐसे 2-3 बार करो, रिपीट इट 2 to 3 times विथ फ्रेश वाटर, सो ऑल द सॉल्ट्स विल बी लीच्ड। ओके, तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, इससे तुम सॉल्ट्स को निकाल सकते हो। और एक दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन है, अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट सलाइन सॉइल्स बन गया है, सफेद कलर का सॉल्ट का क्रस्ट फॉर्म हो गया सरफेस के ऊपर। कच्छ में तुमने देखा होगा सॉल्ट डेजर्ट, कच्छ में वो मूवी भी है, गाने भी बने उधर उसमें, तो इनक्रेडिबल गुजरात या वैसे कुछ है, गुजरात का जो टूरिज्म का एड में भी आता है, पूरा सॉल्ट जम जाता है सॉइल के ऊपर। सो देयर इज ए क्रस्टेशन, एनक्रस्टेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द सरफेस। अब सॉल्ट सरफेस पे आके क्रस्ट बन गया तो बैठ के खुरपी पकड़ो और बैठ के पूरा सॉल्ट को हटाओ, कलेक्ट करो और निकाल दो, पर स्क्रैपिंग द सॉल्ट फ्रॉम द सरफेस ये कर सकते हो, पर ये टेम्पररी है। फिर इवापोरेशन तो कंटिन्यूअसली होता रहेगा ना, नीचे से सॉल्ट आके ऊपर जमा होते रहेगा। सो अगले फिर 2-3 महीने में फिर से सॉल्ट क्रस्ट फॉर्म हो जाएगा। सो इट इज ए टेम्पररी सॉल्यूशन, नॉट वेरी इफेक्टिव, लेबर भी ज्यादा लगता है। तो स्क्रैपिंग ये है पॉसिबल सॉल्यूशन है, बट इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। और क्या कर सकते हो, प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज। मैंने बताया था सॉल्ट एक्यूमुलेट हो सकता है अगर दूर से पानी आकर लो लाइंग एरिया में जमा हो रहा है, अगर यहां पर ड्रेनेज अफेक्टेड है तो सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज, आर्टिफिशियल जो तुम्हारा है ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज या फिर तुम दूसरा पाइप ड्रेनेज से आर्टिफिशियली यू रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल, तो सॉल्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा। दूसरा, यूज ऑफ सॉल्ट फ्री इरिगेशन वाटर। बहुत सारा सॉल्ट जो एक्यूमुलेट होता है फील्ड में वो इरिगेशन वाटर के थ्रू होता है। अगर तुम्हारा पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, पानी में ही सॉल्ट है, सो ओवर द ईयर जब तुम इरिगेट करोगे तो सॉल्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा। सॉल्ट फ्री इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर का भी क्वालिटी होता है, इफ इट passes that quality then only you should use it for irrigation. Then proper use of irrigation water. अच्छा देखो, अगर तुम्हारा सॉइल वेट है यानी ज्यादा पानी दिया है, if the water, if the soil is moist, it is always moist,
इनफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, तो तुम्हारे सॉल्ट्स जो होंगे वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे। जैसे जैसे पानी इवोपरेट होता जाएगा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बढ़ता जाएगा। सो डाइल्यूटेड फॉर्म में तुम्हारा ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सीड जर्मिनेशन प्रोसेस इज वेरी सेंसिटिव। सीड जर्मिनेशन प्रोसेस जो है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में सीड जर्मिनेशन इज अफेक्टेड। तो अगर तुम्हारा सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहता है तो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेंगे सॉल्ट्स भी। सो प्रॉपर यूज ऑफ इरिगेशन वाटर मींस इस तरह से मैनेज करो कि तुम्हारा सॉइल हमेशा गीला रहे, तो उससे तुम्हारे सॉल्ट्स अगर हैं भी तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। सो ऑर्गेनिक मैन्योर when it decomposes organic acids will be produced. These organic acids like humic acid, fulvic acid, these are resistant, they will not further decompose. तो ये जो है ना organic acids जो हैं ये slightly acidic हैं, they might help in bringing down the pH, थोड़ा सा pH को नीचे लेके आएंगे। Then अब कुछ भी अगर नहीं कर सकते हो तो भैया टॉलरेंट क्रॉप्स यूज कर लो। सलाइन सॉइल्स की बात कर रहा हूं मैं। अल्कली सॉइल्स में तो क्रॉप ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। सलाइन सॉइल्स में सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर लो। हाईली टॉलरेंट में यू हैव एग्जांपल्स लाइक बार्ली एंड शुगर बीट। मॉडरेटली टॉलरेंट क्रॉप्स में वी हैव व्हीट, राइस, मेज एंड सोरगम, दे कैन टॉलरेट मॉडरेट सैलिनिटी। अच्छा, लास्ट अब है अल्कली सॉइल का रिक्लेमेशन। ओके, सो अल्कली सॉइल के रिक्लेमेशन में अल्कली सॉइल से पहले एक और कैटेगरी आती है सलाइन अल्कली। अच्छा, सलाइन अल्कली सॉइल्स में रिक्लेमेशन के लिए अगर तुम लीचिंग का यूज करते हो इन सलाइन अल्कली सॉइल्स व्हिच हैव सॉल्ट्स आल्सो और एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ सोडियम, ईएसपी भी ज्यादा है, अगर यहां पर तुम लीचिंग करोगे तो सॉल्ट्स तो लीच हो जाएंगे, सॉल्ट्स विल लीच, बट इट विल मेक द सॉइल मोर हार्मफुल बिकॉज सलाइन अल्कली में सलाइन निकाल दिया तुमने, सॉल्ट्स निकाल दिए तो क्या बचेगा? द सॉइल विल टर्न अल्कलाइन, तो सॉइल को तुम और खराब कर दोगे। तो सलाइन अल्कली सॉइल्स में लीचिंग पहले नहीं करना। अगर लीचिंग करोगे तो सिर्फ अल्कली सॉइल बन जाएगा, ये और हार्मफुल सॉइल बन जाएगा। सो यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कली पार्ट। तो अल्कली सॉइल्स को कैसे रिक्लेम करोगे? यू एड जिप्सम। सो जिप्सम ऐड करो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो 2H2O। सो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यूज करो, एडिशन ऑफ जिप्सम, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑब्वियसली इट विल ब्रिंग डाउन द पीएच, ऑर्गेनिक एसिड्स वो तो है ही। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम ऐड करने से क्या होता है? आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। यहां पर ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड जिप्सम, जिप्सम ऐड करोगे तो क्या होगा? जिप्सम जब तुम ऐड कर रहे हो कैल्शियम सल्फेट, सो यू आर एडिंग कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? एक्सेस जब तुम जिप्सम ऐड करोगे, सोडियम जो क्ले कॉम्प्लेक्स में जो सोडियम है, सोडियम विल बी रिप्लेस्ड, सोडियम हट जाएगा यहां से, सोडियम विल बी रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम, यहां से सोडियम हट जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम विल रिप्लेस द सोडियम, एंड जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बन जाएगा। सो कैल्शियम विल कम, सोडियम विल बी रिप्लेस्ड, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम आके ऐड हो जाएगा ना, तो सल्फेट, सोडियम जाके वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। दिस सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल, वो इजीली लीचेबल है। अब जिप्सम ऐड करने के बाद फिर तुम लीचिंग करो, पहले लीचिंग नहीं करना, जिप्सम ऐड करने के बाद फिर लीचिंग करो, सोडियम सल्फेट विल बी रिमूव्ड। अच्छा, जो कुछ भी सॉल्ट है, सलाइन अल्कली है या फिर अल्कली सॉल्ट में सॉल्ट जो है मेनली सोडियम कार्बोनेट है, so this sodium carbonate will react with gypsum to form calcium carbonate and sodium sulfate. So sodium sulfate again is leachable. तो जिप्सम ऐड करो, जिप्सम। उसके अलावा क्या कर सकते हो? जिप्सम के अलावा यू कैन गो फॉर एडिशन ऑफ सल्फर, सल्फर ऐड कर सकते हैं। बट जब भी तुम सल्फर ऐड करोगे, whenever you are adding sulfur, remember ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है। सो whenever you are adding sulfur for the reclamation of alkali soil, always you have to add organic matter, क्योंकि जो सल्फर है पहले वो ऑक्सीडाइज होगा। एलिमेंटल सल्फर
को पहले ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। एलिमेंटल सल्फर जो है, सल्फर हैज टू बिकम सल्फेट आयन। तो ये ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है, इट इज डन बाय माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को पहले खाना चाहिए ना, कार्बन सोर्स चाहिए टू ग्रो एंड टू मल्टीप्लाई। फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। सो ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई करना जरूरी है जब भी तुम सल्फर यूज करते हो रिक्लेमेशन के लिए। सो व्हाट हैपेंस, दिस सल्फर विल बी ऑक्सीडाइज्ड, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्वड, है ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, सल्फेट। सल्फेट जब पानी से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सो वो मिनरल एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट विच इज प्रेजेंट टू गिव यू सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सोडियम सल्फेट विल बी रिमूव्ड। ओके, सो जो भी यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, दैट कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट अगेन, यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, सो कैल्शियम कार्बोनेट विल अगेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, which is again soluble. So सल्फर एंड जिप्सम ऐड करके तुम रिक्लेम कर सकते हो अल्कली सॉइल को। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, यू हैव टू राइट देम डाउन। तुमको ये लिखना पड़ेगा। एसिडिक सॉइल कैसे बनता है अगर आएगा उसमें, तो फिर तुमको वहां पर बताना पड़ेगा अमोनियम सल्फेट ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कैसे सॉइल एसिडिक बन रहा है। रिक्लेमेशन में अगेन यू हैव टू राइट दीज इक्वेशंस, दीज विल फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है। सो दैट वाज प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स और प्रॉब्लम सॉइल्स, एसिडिक, सलाइन, अल्कली। एसिडिक सॉइल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मेनली सलाइन, अल्कली सॉइल्स, व्हाट आर दीज सॉइल्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्लेमेशन ऑफ दीज सॉइल्स, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। सो बी रेडी, चांसेस है कि इस बार एग्जाम में ही आ जाए। दैट विल बी ऑल, थैंक यू वेरी मच।